So, hello everyone, my name is Deepak Bhardwaj and I'm one at Nagaro and I'm finished on lead code. I'm finished on code self. So, today we are going to solve the questions of POD of lead code of 14th of September. And this is a very famous question, and with this question will be asking Fang and Mang Company. And this question is based on what we will discuss on that. Okay. So, first we will understand the topic of this video. First, we will understand the approach, it means idea. After that, after solving the questions and after writing the code, we will discuss over the time complexity. कि हम लोग का code का TC कितना है, and then we will understand the space complexity, right? Okay, so this is the end of this video, and this is the lead code 14 of the number questions. Okay, and this question will be asked in PVC and MNC. Okay, so now let's read the questions. Okay, this is a very important questions, and this is the hard level question on lead code, but actually it isn't a hard level question. If you want to watch this video till the end, and once you understand the topics of this video, then it will be easy for you. Okay. Okay, so reconstruct the itinerary. Okay, basically reconstruct the icons, reconstruct the destinations of the airport. This means the questions. Okay, you are given the list of airline tickets. Okay, tickets and where tickets I. Tickets I means departure and arrivals. Okay, this is the question means like from where to where. Like suppose the from Delhi to Patna, from Delhi to Kolkata, like this. Okay, represent represent departure and arrival. Okay, arrival. You are put on one flight, which one flight can go from Delhi to Kolkata, Delhi to Bihar. Okay, then what we need to do, reconstruct the airports only, itinerary, I can say airports. Okay, in order and return it. Okay, and all of the tickets belong to a man who departs from the JFK. I mean question में दिया जा रहा है कि जो departures होगा from JFK से होगा, right? And thus itinerary must begins with इतना means JFK के शुरू होना चाहिए. एक क्वेश्चन का मीनिंग है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया जा रहा है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जो डिपार्चर से शुरू होगा ना वो JFK से शुरू होगा आपका एवरी एग्जांपल में. ओके, if there are multiple valid itineraries, you should return the itinerary that has the smallest lexical order will read as the single string. Okay. मीन्स अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, यहाँ पे एक मीनिंग यहाँ पर है और स्मॉलेस्ट लेक्सिकल. तो मीन्स लेक्सिकल ऑर्डर क्या होता है? अगर सपोज कि आपके पास ए बी सी है और आपके पास यहाँ पर ए बी डी है. ओके, या आई कैन से आपके पास ए बी डी है और आपके पास ए बी सी है. तो ए बी सी ऐसे, तो अगर आपको इसको ऑर्डरिंग करना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसका ऑर्डरिंग जो पहले आएगा ना, वो पहले आपका ए बी डी आएगा एंड देन आपका ए बी डी आएगा. मतलब पहले क्या है कि पहले वो स्ट्रिंग आएगा जिसका आज की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्ट्रिंग से. ठीक है, तो दिस इज द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर. मतलब कि आगे बोले पहले ए आएगा, देन पे बी आएगा, देन सी आएगा, देन डी एंड सो ऑन. दिस इज द योर लेक्सिकल ऑर्डर मीन्स. ओके, तो हम लोग को उस वेस में हम लोग आंसर को रिटर्न करना है. ठीक है, ओके. तो अभी हम लोग अभी आई होप क्या बताया, यहाँ क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम एग्जांपल अभी डायरेक्ट करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड देयर आल्सो. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि लेक्सिकल का मतलब क्या हो रहा है कि अगर सपोज आपके पास दो स्टेशन नहीं, दो डेस्टिनेशन आपका एक डेस्टिनेशन ये है और एक आपका अराइवल ये है, और यहाँ पर आपका एक डेस्टिनेशन है, आपका अराइवल ये है. तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास एक है JFK. ठीक है, ये आपका डिपार्चर है और आपका यहाँ पे LG है, ये आपका अराइवल है. तो ये एक अलग स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और आपका एक यहाँ पर JFK और ये आपका एक है LGB. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि अगर देखें तो ये दोनों तो सेम है. स्टार्टिंग तो आपका जो डिपार्चर जो हो रहा है वो JFK से हो रहा है, ये आपका एयरपोर्ट का नाम है. ठीक है, और आपका जो अराइवल है LG है और ये आपका LGB है. तो आप यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेक्चर आपके ऑर्डर में देखिए LG के बाद क्या है, यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पे LG के बाद क्या है, B है. तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि लेक्सिकल में क्या होगा, जिसका आज की वैल्यू कम होगा वो आगे आएगा, जिसका ज्यादा होगा वो पीछे आएगा. तो आप देखिए एक आज की वैल्यू B से कम है, तो इसलिए यहाँ पर ये होगा, ये स्मॉलर है, तो हम लोग आंसर में ये जाएगा, ना कि ये जाएगा आंसर में, ये नहीं जाएगा, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन मींस द लेक्सिकल. ओके, आई होप कि लेक्सिकल आपका क्लियर हो चुका होगा, राइट. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एग्जांपल से उसको समझते हैं. ठीक है, अब हम लोग को एग्जांपल तो समझते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या था. ठीक है, तो ऑलरेडी एक चीज यहाँ पे मेंशन था कि जो आपका डिपार्चर जो होगा वो कहाँ से होगा, आप ये याद रखना. ये पॉइंट आपको ध्यान माइंड करना है कि आपका जो डिपार्चर जो होगा, जो पहला जो एयरपोर्ट से आपका जो फ्लाइट डिपार्चर होगा वो आपका होगा ना, लेट मी जस्ट वन थिंग, जो आपका जो डिपार्चर जो होगा, जो आपका डिपार्चर होगा, लेट मी जस्ट एक्सटेंड इट. ओके, ओके ना भाई. तो जो आपका डिपार्चर जो होगा वो क्या होगा, JFK, राइट. इससे आपका एक फ्लाइट डिपार्चर होगा, या स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग जो होगा एयरपोर्ट यहाँ से होगा. ये इसको ध्यान ध्यान में रखना है. ठीक है, नाउ फाइन.
ओके, तो अब एग्जांपल में आप देखते हैं जो हम लोग की ये डिपार्चर और अराइवल दिया जा रहा है एक स्ट्रिंग फॉर्म में, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में दिया जा रहा है, ठीक है। तो करना क्या हम लोग को कि इसको हम लोग को एयरपोर्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब ये था रिकंस्ट्रक्ट करना। तो ओके, तो जो जो स्टार्टिंग जो होगा वो जेएफएस के होगा, जो एयरपोर्ट जो होगा वो जेएफएस का स्टार्टिंग होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे ये मेरा में ये दिया जा रहा है, ये मेरा अगर एग्जाम्पल से इसका आउटपुट क्या हो रहा है, मेरा ये आ रहा है, राइट, दिस वन। अब समझते हैं, राइट। अब देखते हैं, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो जीएफएस के था स्टार्टिंग यहाँ पर ही हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इस जो गिवन स्ट्रिंग था इसमें जीएफएस एक था, तो स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, देख रहे हैं एग्जाम्पल में स्टार्टिंग यहाँ दे रहे हैं। और ये ये इसका अराइवल क्या था, यहाँ पे एम यू सी था, एम यू सी मक था, ठीक है। तो यहाँ पर अराइवलिंग हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं अराइविंग हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये एमएसवी मक था ये कहाँ कहाँ इसका एक अलग डेस्टिनेशन था, ये एक अलग डेस्टिनेशन है। तो इसका अराइविंग कहाँ है, इसका अराइविंग जो है एलएचआर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे अराइविंग हो रहा है, राइट। हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट्स को, ठीक है। आइटरेडी को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप अब ये देखें तो यहाँ पर आपका एलएचआर का जो डेस्टिनेशन का अराइविंग क्या था, एसएफओ था। तो ये इसका यहाँ पर अराइविंग कर रहा है, राइट। और एसएफओ का जो अराइविंग था वो इसका कितना था, एस एस जेसी था। तो इसका अराइविंग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट। कैसे हम लोग इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना। अब देखिए, तो हम लोग इसको इसको रिकंस्ट्रक्ट किए, तो ये आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ गया, राइट। तो हम लोग रिकंस्ट्रक्ट इसको कर लिया। तो क्योंकि इसका आंसर में स्टार्टिंग में ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन था क्लियरली, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर कि जो क्वेश्चन में हम मेंशन क्लियरली था कि स्टार्टिंग जो होगा वो जेएफएस के होगा, यहाँ बिगिंस, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग जो करो जेएफएस के होगा, ठीक है। ओके, आई होप कि यहाँ तक डाउट ना भी क्लियर हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखिए, आपका पक्का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ तो हम फिर से आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स कहाँ गए, यहाँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर देख लें कि रिकंस्ट्रक्ट किया, तो अब ये स्टार्टिंग इसका यहाँ था, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ गया। तो हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सिंपली, दैट्स मीन सिंपल कि पहले स्टार्टिंग अगर इसका स्टार्टिंग यहाँ से था तो कहाँ इसका डेस्टिनेशन क्या था, ये एम से देखा था। और एम यू सी का डेस्टिनेशन कहाँ था, इसका ये था। तो हम बस अटैच कर रहे हैं, मतलब उसको कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं हर एक डेस्टिनेशन, हर एक अराइवल एक इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्टेड है वो किसी न किसी एक एयरपोर्ट से, राइट। हर एक जो होगा आपका एयरपोर्ट वो कनेक्टेड है, डायरेक्टेड है किसी एक एयरपोर्ट से, ठीक है। जो कि वन फ्लाइट वहां से वहां फ्लाई कर सकता है, वहां से वहां जा सकता है, राइट। वो हो गया, तो स्टार्टिंग होगा आपका ये होगा। और एक चीज, अब जो आपका आंसर जो रिटर्न करना वो लेक्सिकल में होगा, मतलब जिसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसी वो पहले आएगा। वो जो मेंशन अब जो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे, राइट। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि अगर अब से एक चीज आप यहाँ गेस कर सकते हैं, सिंपली गेस कर सकते हैं कि अगर एक जो एयरपोर्ट होगा, एक फ्लाइट जो होगा, एक जो फ्लाइट होगा, वो फ्लाइट मान लो सपोज कि आपका कोई फ्लाइट ए है, ठीक है, ये फ्लाइट ए है, राइट। इसका जो डिपार्चर हो सकता है, जो इसका अराइवल हो सकता है, वो अराइवल क्या हो सकता है, मान लो आपका अराइवल ई एफ एस के पे जा सकता है, आपका ई म्यू एक्स पे भी जा सकता है। मतलब एक जो फ्लाइट होगा उसका डेस्टिनेशन जो होगा, मतलब जो उसका अराइवल होगा वो मल्टीपल हो सकता है, राइट। मल्टीपल तो हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप सोच सकते हैं कि एक फ्लाइट मल्टीपल जगह पे आपको डेस्टिनेशन रीच कर सकता है, मतलब अराइव कर सकता है। तो हम लोग अगर मान लो कि मेरा एक एयरपोर्ट अगर मान लो कि वो फ्लाई कर रहा है एम यू सी से, ठीक है, और वो अराइव कर रहा है जेएफएस के से, और अराइव कर रहा है एसओपी से। तो हम एम यू सी के एज ए की समझेंगे, और जो उसका अराइविंग होगा उसको इंसर्ट कर देंगे, हम उसको इंसर्ट वहां पर रख देंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर भी क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज अनऑर्डर मैप, राइट। बिकॉज हम लोग एक जो होगा वो की होगा, और उस की पर वो फ्लाइट जहां जहां अराइव करेगा उसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे, वो कहाँ कहाँ अराइव कर रहा है। और जो उसमें से लेक्सिकल कम होगा हम लोग उसको इंसर्ट कर देंगे अपने आंसर में, सिंपल। ये क्वेश्चन यही था, राइट। अब एक चीज हम यहाँ पर गेस कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आप जो एग्जाम्पल ये देख रहे हैं, जो एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो कि हर एक जो डेस्टिनेशन ऑन अराइवल है वो एक नोड की तरह बिहेव कर रहा है। आप इसको आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि जो भी एक जो एयरपोर्ट है वो एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डायरेक्टेड हो वो एक क्या आपका एक डायरेक्ट कर रहा है एक दूसरे एक दो नोड के बीच में, वो डायरेक्ट कर रहा है, मतलब दो एयरपोर्ट के बीच में एक एज डायरेक्ट कर रहा है कि ये जो फ्लाइट होगा कहाँ से कहाँ जा सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जे एफ से में फ्लाइट अगर उड़ता है तो ये कहाँ जाएगा, एम यू सी के जाकर लैंड करा है, ये नहीं कि एम यू सी से वो जेपीएस के पास सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टेड है। कि ये जो है ना आपका डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। आप गेस कर सकते हैं कि ये जो एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या समझे, ये आपका एक डायरेक्टेड ग्राफ हो गया कि एक नोड से वो कहाँ कहाँ लैंड कर सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन मीन्स, तो हम लोग अप्रोच समझ चुके हैं, हम लोग आइडिया ही था कि ये एक डायरेक्टेड
ग्राफ है, ठीक है। और ये डीएफएस मतलब ये हम बोला डीएफएस, अगर ग्राफ पे तुमने डीएफएस ट्रैवर्सल तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम लोग को हर एक एजेंसी नोट फाइंड करना, हर एक एजेंसी एयरपोर्ट फाइंड करना है कि वो मेरा फ्लाइट हो कहाँ कहाँ लैंड कर सकता है, सिंपली तो डीएफएस ट्रैवर्सल हम अप्लाई करेंगे। तो हम लोग अप्रोच फाइंड आउट कर लिए कि जो क्वेश्चन बेस है वो ग्राफ पर बेस्ड है, हम यहाँ पर डीएफएस अप्लाई करने जा रहे हैं। और डीएफएस अप्लाई करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग रिकर्सिव यूज करेंगे, तो रिकर्सिव प्लस डीएफएस, सिंपल राइट। आई हैव गॉट वी हैव गॉट द अप्रोच। तो अब अगर आप लोग समझ चुके हैं तो हम ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि हम लोग का एक जो फ्लाइट होगा वो मल्टीपल डेस्टिनेशन या मल्टीपल एयरपोर्ट को लैंड कर सकता है। तो ये सपोज अगर एक एयरपोर्ट का नाम ए है और वो फ्लाइट एक एक फ्लाइट एफ है, वो लैंड कर रहा है एयरपोर्ट बी, डी एंड ई, तो ऑब्वियसली हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये फ्लाइट कहाँ का लैंड किया। तो जो फ्लाइट जो एयरपोर्ट ए था वहां से लैंड किया बी, डी एंड ई, तो जो उसकी हम जो पहला जो फ्लाइट जहां से उड़ रहा है उसको हम की समझेंगे उस एयरपोर्ट को, और जहां जहां लैंड करा उसका वैल्यू को हम लोग डाल देंगे उस की में, सिंपल, फाइन, ओके। ओके, ठीक। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर कोड को इम्प्लीमेंट कर, यहाँ पर हम लोग कोड इम्प्लीमेंट किए, सिंपल फाइंड, कुछ हार्डेस्ट है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मैप डिक्लेयर किया हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर स्ट्रिंग हुआ क्योंकि आज डेटा टाइप हुआ स्ट्रिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं फ्लैट जो एयरपोर्ट का नाम हो क्या एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं हर एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं। और हम यहाँ पर वेक्टर पे स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं कि हम ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक जो एयरपोर्ट होगा, अगर फ्लाइट अगर ये एयरपोर्ट ए से उड़ रहा है तो कहाँ कहाँ लैंड कर रहा है, तो बीसी, तो इसलिए वहां पर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होता है, वहां पर बीसी डाल देंगे, सब हम बोलते रहे ना ऑलरेडी कि अगर ए फ्लाइट एफ है, ठीक है, ये अगर यहाँ से टेक ऑफ करता है ए से, ठीक है, और लैंड कर रहा है बी पर, सी पे एंड डी पर, तो ऑब्वियसली है ना कि ये तो एबीसीडी क्या एक स्ट्रिंग है, तो कहाँ कहाँ लैंड किया, तो यहाँ तीनों को इंसर्ट कर देंगे, तो जैसे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग समझ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया हूँ। आप ग्राफ पे जाकर आप यहाँ पे इसको एडजेंसी लिस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में हम लोग बेसिकली जो है अगर नेबर नोड फाइंड करते हैं तो एडजेंसी लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं राइट। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, सिंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल इंसर्ट कर रहे हैं, सिंपल इंसर्ट कर रहे हैं, लाइक अगर हम एग्जांपल नंबर इसका देखूं, अगर हम इस एग्जांपल को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या हम लोग कर रहे हैं कि अगर देखें कि अगर मेरा ये जो है एमयू से एज ए की होगा, इसकी पे वैल्यू जाएगा, ए एज ए की होगा, इसकी पे वैल्यू जाएगा, ए एज ए की होगा, इस वैल्यू पे ये जाएगा, ए एज ए की होगा, इस पे वैल्यू पे ये जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर यही कर रहे हैं, ये बस इंसर्ट कर रहे हैं, सिंपल राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर मैं ये मेरा एक लैम्डा फंक्शन मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लैम्डा फंक्शन। गूगल पे जाकर सर्च करिए कि व्हाट अबाउट द लैम्डा इन सी प्लस प्लस, यू विल गेट द नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रिवर्स सिंपल हम यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो कि अगर मेरा एबीसी है ना, तो इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा उल्टा में सॉर्ट करके, मतलब उल्टा सॉर्ट करके यहाँ पर ये हो जाएगा सी, बी एंड ए, मतलब जनरली क्या हो गया सॉर्ट करा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हाई से लो जा रहा है, सिंपल। तो ये मैं यहाँ पे सॉर्ट, ये ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मेंशन था कि मुझे लेक्सिकल ऑर्डर में मुझे आंसर स्मॉलेस्ट को मुझे पिकअप करना है, नोट की हाई है तो स्मॉलेस्ट में निकालने के लिए, तो जो लास्ट में होगा मेरा स्मॉलेस्ट होगा वहां से मैं पिकअप कर लूंगा, ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या ये मेरा एक मेरा वेक्टर स्ट्रिंग रिजल्ट नाम के मैं यहाँ पे मैं अपना आंसर को स्टोर करूंगा, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो था ये समझना कि यहाँ पे मैंने एक लेमडा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ये एक लेमडा फंक्शन है, ठीक है, लेमडा फंक्शन से, ये एक लेमडा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था सी प्लस प्लस में। आप इससे एक आर्टिकल जाकर पढ़ लीजिएगा गिक्स पर या इंटरव्यू बीट पर, आप गूगल में सर्च करिएगा कि इन आइडिया अबाउट या व्हाट इज द लैम्डा फंक्शन इन सी प्लस प्लस, यू विल गेट द लॉट्स ऑफ सजेशन ऑन गूगल, सो यू विल गेट द नॉलेज ऑफ दैट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या करूँ, अभी से यहाँ समझ सकते हैं यहाँ पे हम जीएफएस के डीएफएस में कॉल कर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये ग्राफ के क्वेश्चन है जो कि हर एक नोड कनेक्टेड है और ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, और हर एक नोड के बीच में जो एज है वो एक इंडिकेट कर रहा है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब फ्लाइट बैक नहीं आ सकता। मतलब कुछ कहने का मतलब कि अगर मेरा एक डेस्टिनेशन ये है और एक यहाँ पर ये है, ठीक है, मतलब दो एयरपोर्ट है, अगर ये ऐसे कनेक्टेड है तो मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या हो कि फ्लाइट यहाँ से या तो जा सकता है बट यहाँ से वापस ये आ नहीं सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टेड है, ठीक है। तो ये मेरा एक एयरपोर्ट ये हो गया, एक एयरपोर्ट बी हो गया, ठीक है, फाइन। जो स्टार्टिंग जो एयरपोर्ट होगा वो जेएफएस के होगा, जो क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन था, इसमें यहाँ पे डीएफएस ट्रैवर्सल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि हर एक मैं नेबर नोड फाइंड करूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे जेएफएस कॉल किया हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था, अगर आपको जानना है तो देख सकते हैं कि यहाँ मेंशन था कि जो स्टार्टिंग जो होगा यहाँ पे देख सकते हैं ये जेएफएस के से होगा, राइट, सिंपल है ना। अब एक फिर से अगर मैं इसको इरेज करके दिखाना चाहूँ आपको, तो देख सकते हैं जो स्टार्टिंग हो जेएफएस के से हो रहा है, राइट, ओके। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं फिर से हम लोग अपने डिस्कशन पार्ट पर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये कॉल कर रहा हूँ डीएफएस क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक कॉल कर रहा हूँ, अब मैं एवरी टाइम मैं फाइंड करूँ क्या मेरा जो ग्राफ जो मैं सपोज लास्ट स्टार्टिंग मेरा यहाँ पर ये है, तो आप देख सकते हैं मैं अगर एग्जाम्पल में देखूँ तो जेएफएस के मेरा क्या एमयूसी के है, तो आप देख सकते हैं कि एम यू सी के है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ डालता हूँ ग्राफ में, मतलब एक मैप है तो वहाँ मैप है वैल्यू तो है ये मेरा ये, तो मैप एम्प्टी नहीं उसके अंदर घुसूंगा, तो अंदर घुस रहा हूँ तो जो मैं इसमें इसको मैं स्ट्रिंग में एज फाइंड आउट करूँ वहां से, तो मेरा अभी जो नेक्स्ट हुआ मेरा एम यू सी है, राइट, वो मेरा क्या है एम यू सी है।
एंड जब मैं एम से ले रहा हूँ तो मैं लास्ट में फिर मैं उसको वहां से इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि आगे भी तो अगर सपोज कि एक एयरपोर्ट जो वो एयरपोर्ट एक जो फ्लाइट है वो एयरपोर्ट ए से टेक ऑफ किया, वो लैंड कर रहा है एबीसी पर, तो मल्टीपल डेस्टिनेशन हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको आगे भी तो आंसर हो सकता है, तो इसलिए मैं पॉप करके दूसरा भी आंसर तो हो सकता है और ले रहा हूँ, ठीक है। ये कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ जब यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पे रिकर्सिव कॉल बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे बैक कॉल कर रहा हूँ, एंड एट द लास्ट में कह रहा हूँ कि अपना इसमें पुश बैक कर दो एयरपोर्ट, जो मेरा आइटनरी जो मेरा वेक्टर था उसमें मैं जो स्ट्रिंग टाइप का था उसमें मैंने अपना यहाँ पे पुश बैक कर दे रहा हूँ, राइट। एंड एट द लास्ट में क्या कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि जैसे लगे अगर यहाँ देखूँ तो ये कॉल आप जाएगा फिर देन ये बैक कॉल आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा ना, मुझे लेक्सिकल में आंसर ऑर्डर में रिटर्न करना, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये सिंपल लास्ट में रिवर्स कर दूं, क्योंकि जो मेरा आंसर इसमें जो होगा ना, मेरा जेएफएस के जो होगा वो लास्ट में आएगा। अब ऊपर में जो होगा एमएससी, ऊपर में जो मेरा जाएगा वो मेरा जाएगा, अगर टॉक अबाउट तो ये जाएगा मेरा, ये एसओप हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में मेरा एसओप होगा और नीचे मेरा होगा जेएफएस के, तो लास्ट में जाएगा, बट मुझे इसको स्टार्टिंग में करना है, इसलिए मैं यहाँ पर रिवर्स कर दे रहा हूँ यहाँ पर, देन लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा। सिंपल था ये, ठीक है। आप अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवॉच करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंट्यूशन। यहाँ पर हम लोग काफी चीज यूज किया हूँ, आई होप कि आपके लिए नया भी हो सकता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। We'll make the video on the graph as well, and we will make you understand what is the component and node and the edges and what is directed graph and all. Okay, so don't worry about that. What is DFS? We will discuss over that even discussion. It is just for the purity of the lead code, so to maintain the consistency. I just made this video for all of you. Okay. ओके, सो नाउ लेट्स रन दिस कोड ऑल्सो, जो हम लोग करते आ रहे हैं ऑन लीड कोड आईडी पर, और हम लोग वहां पे देखते हैं कि एक्सेप्टेड वहां पर है कि नहीं है। देन वी विल अंडरस्टैंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, बिकॉज़ द टीसी हम लोग समझना ही है ना कि टीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोड तो लिख चुके हैं, तो आपका कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंड कोडिंग, ठीक है, ताकि आप अपने कोड को अच्छे से डिलीवर कर पाए इंटरव्यू के सामने एंड आपका कोड का एक्यूरेसी ज्यादा हो, ठीक है। ओके, सो नाउ हम लोग लीड कोड आईडी पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर रीच कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सेप्टेड है ये भी कि नहीं है लीड कोड पे, ठीक है। सो लेट्स एक्सपेंड दिस एंड ओके, ओके, सो नाउ सिंपली जस्ट लेट एक्सपेंड दिस। ओके, नाउ लेट्स रन दिस हियर, रन करते हैं, देखते हैं कि एक्सेप्टेड ये पासिंग ऑल द टेस्ट और नॉट, कि टेस्ट पास कर भी रहा कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। या तो इट गॉट एक्सेप्टेड एंड पासिंग ऑल द टेस्ट, अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो इट गॉट एक्सेप्टेड, यस नोट, लेट्स चेक दिस आल्सो, ठीक है। ओके, नाउ फाइन। सो नाउ वी कैन सी दैट कि ये एक्सेप्टेड हो चुका है, जिसका जो टीसी लिया वो 30 मिली सेकंड लिया और स्पेस जो 14 एमबी ले रहा है, एक्चुअली ले रहा है, मैं बताता हूँ, ठीक है। नाउ सो ये आपका देख सकते हो ये कोड है, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका कोड समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको लिखे हैं। यहाँ पर मैं लेमडा अप्लाई किया हूँ, यहाँ पर सिंपल मैं मैप यूज किया हूँ एजेंसी के लिए, और बस मैं इसमें यहाँ पर एक सॉर्टिंग यूज किया हूँ कि वो रिवर्स कर दे ताकि लेक्सिकल में फाइंड करना इजी हो जाए, एंड लास्ट में अपना आंसर डन कर दिया, सिंपल है ना। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर कोड, दैट कि हम लोग का कोड का टीसी कितना और सी कितना, राइट। ओके, फाइन। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ओके, या तो अगर मैं बात करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो आप देख सकते हैं इस कोड में क्लियरली यहाँ पर लिखा, हम लोग लिख चुके हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक सॉर्टिंग यूज कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि सॉर्टिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो कितना होता है, एन लॉग एन, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक लूप ट्रैवर्स करें तो इसका क्या होगा, बिग ओपन होगा। एंड आप देख सकते हैं फिर से आप यहाँ आप बस सिंपली बिग ओपन, तो आप ओवरऑल अगर मैं टीसी की बात करूँ तो आपका टीसी जो होगा वो होगा आपका एन लॉग एन, ठीक है। और अब यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं मैप में अपना वो, आप मैप में स्टोर कर रहे हैं एयरपोर्ट्स के कहाँ का एक फ्लाइट लैंड कर रहा है, तो उसका जो आप स्पेस जो होगा वो आपका बिग ऑफ एन होगा। अब जहाँ पर ये जो एन है ना, वो आपका क्या स्ट्रिंग ऑफ इसका साइज, स्ट्रिंग का साइज दिया हुआ है, क्यों वो कितना उसमें, तो वही आपका ये है। तो ये आपका टाइम कंप्लीट हुआ, आपका स्पेस कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि हम लोग सक्सेसफुली हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑफ दिस क्वेश्चन के क्वेश्चन में हम लोग क्या किया, तो हम लोग अगर एजेंडा को बात करें तो हम लोग यहाँ पर इसका आइडिया ना समझे, डीएफएस यूज किया यहाँ पर विद रिकर्सिव, राइट। टीसी समझ लिए कि लॉग इन है और ऐसे कितना बिग ऑफ एन है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ एंड आई विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू haven't understand the questions nicely, to like you watch this video once again. If you are still having the problem, to feel free to ask your query in the comment section. We will go there and reach out and help you nicely, but don't worry, we will make the video on the graph as well. So thank you so much once again and to watching this video till the end. And one thing I'd like to tell, if you haven't subscribed the channel, so please do subscribe and please like on this video. And thank you so much once again. And bye bye and take care.